آئیں کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ہم تلاوت کریں۔ نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا عارف کی معرفت لکھا گیا خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ، اور اس کا 3 باب 14ویں آیت سے تلاوت کریں گے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو ضرور میرے ساتھ مل کر نکالیے۔ مقدس یوحنا عارف کی معرفت لکھا گیا خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ، اس کا 3 باب 14ویں آیت سے یہاں پر یوں مرقوم ہے: اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، پس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، مقدس یوحنا عارف کی معرفت خداوند یسوع مسیح کا یہ مکاشفہ ہے۔ بہت سارے لوگ اسے یوحنا عارف کا مکاشفہ کہتے ہیں، لیکن دراصل تو یہ مقدس یوحنا عارف کا مکاشفہ نہیں ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، ریولیشن ہے۔ ہاں، خداوند یسوع مسیح کا کلام مقدس یوحنا عارف کی معرفت ہم تک پہنچا ہے، آمین۔ جیسے اناجیل مقدس متی رسول کی معرفت، مقدس مرقس کی معرفت، مقدس لوکا کی معرفت اور مقدس یوحنا رسول کی معرفت ہم تک پہنچی ہیں۔ یہ اناجیل ان کی تو نہیں ہے، یہ اناجیل تو دراصل خداوند یسوع مسیح کی ہیں، لیکن ان کی معرفت ہم تک یہ کلام پہنچا ہے، آمین۔ اس لیے بہت سارے لوگ مسیحیوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پر کوئی انجیل اتری تھی، تو ہم کہتے ہیں کہ ان پر کوئی انجیل نہیں اتری تھی، وہ تو خود انجیل ہیں، وہ تو خود کیا ہے؟ انجیل ہیں۔ کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ وہ خود کلمہ ہے، کلام ہے جو مجسم ہوا ہے، آمین۔ اوکے، یہاں پر 7 کلیسیاؤں کو مختلف پیغامات دیے گئے ہیں، اور یہ تمام کے تمام پیغامات، تمام کی تمام کلیسیائیں ریئل حقیقی کلیسیائیں ہیں، پیغامات حقیقی ہیں۔ جو پیغام ان کو دیے گئے ہیں یہ اس دور میں بھی قابل اطلاق تھے، اور آج بھی تمام کلیسیاؤں کے لیے یہ قابل اطلاق ہیں، جن سے ہم سیکھتے بھی ہیں، برکت بھی پاتے ہیں، اور جب ہم اسے اپنی زندگی میں ایکسپٹ کرتے، قبول کرتے، ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو اور زیادہ ہم خدا کی قربت میں
बढ़ते हैं। आमीन आमीन, हालेलुया। किसी भी कलीसिया को पैगाम लिखने से पहले जो प्रोलॉग के तौर पे या तमहीद के तौर पे कुछ खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से स्टेटमेंट्स दी गई हैं, खुदावंद यीशु मसीह के इंट्रोडक्शन के तौर पे, तारुफ के तौर पे, या खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। लेकिन याद रखें, जो भी स्टेटमेंट कलीसिया को पैगाम देने से पहले बताई गई है, इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है, कनेक्शन जो है, वो उस कलीसिया के साथ है, उस पैगाम के साथ है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप मेरे साथ ये 14वीं आयत को देखें तो लिखा है, लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का मब्दा है, वो ये फरमाता है। अब इस कलीसिया का बड़ा गहरा ताल्लुक है इस इंट्रोडक्शन के साथ, और आपको हर कलीसिया के लिए इंट्रोडक्शन अलग मिलेगा, हर कलीसिया के लिए मसीह का तारुफ अलग मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे सरदीस की कलीसिया को देखें, यहाँ पर लिखा है, अगर आप तीसरे बाब की पहली आयत देखें, लिखा है, सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। इससे पहले कि कलीसिया तो कोई पैगाम दिया जाए, खुदावंद यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन, खुदावंद यीशु मसीह का तारुफ, और 7 की 7 कलीसियाओं के साथ 7 के 7 तारुफ अलग अलग बयान किए गए हैं, मुनफरद अंदाज में, बड़े यूनिक वे में इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि हर कलीसिया के साथ इसका जो तारुफ है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। जैसे हम लौदीकिया की कलीसिया के ताल्लुक से सीख रहे हैं, तो लौदीकिया की कलीसिया को जो इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, जब आप ये पैगाम सुनेंगे तो आप खुद ही रिलेट कर सकते हैं, खुद इस कनेक्शन को बिल्ड कर सकते हैं कि कैसे ये पैगाम जो है वो इस कलीसिया के तारुफ के साथ कनेक्ट होता है, या कैसे ये इस कलीसिया के साथ रिलेट होता है। आमीन, आमीन। ये आपकी असाइनमेंट भी है, आप पैगाम सुने और इस कनेक्शन को, इस ताल्लुक को जो इंट्रोडक्शन और पैगाम के साथ मुंसलिक है, इसको जरूर आप रिलेट करें, जोड़ें कि कैसे ये पैगाम जो है ये इस इंट्रोडक्शन के साथ, प्रोलॉग के साथ या तारुफ के साथ जुड़ रहा है। ओके, आगे बढ़ेंगे। 15वीं आयत में लिखा है, और मैं तेरे कामों को जानता हूं। काम कैसे हैं कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता। सर्द का मतलब है ऐसी शख्सियत जो खुदा से दूर है, सिंपल सी बात, ऐसी शख्सियत जो खुदा से दूर है। और गर्म से मुराद क्या है? ऐसी शख्सियत जो खुदा की कुर्बत में है, जो खुदा की कुर्बत में है, खुदा के साथ वफादार है, और उसके अंदर रूहुल कुद्स की आग जल रही है। उसे हम कहेंगे कि ये क्या है? सरगर्म है, बहुत खुदावंद में मसरूर है। सो इसलिए 2 चीजें यहां बयान की गई कि ना तो सर्द है ना गर्म है। विश देखें खुदावंद यीशु मसीह की क्या है, कहते काश तू सर्द या गर्म होता। खुदावंद यीशु मसीह की ये विश तो बहुत अच्छी लगती है, नजर आती है कि अगर वो ये हमारे बारे में सोचे कि काश आप गर्म होते, मतलब खुदा की कुर्बत में होते, मेरे कलाम पर अमल करते, रूहुल कुद्स से मामूर होते, रूहुल कुद्स की आग से भरे होते। लेकिन हैरानी की बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ये क्यों ख्वाहिश कर रहे हैं कि काश तू सर्द होता। हैरानी की बात है ना, कि भाई गर्म होना तो यीशु मसीह की विश है कि हम सब जो हैं वो उसमें एक्टिव हो जाएं, हम उसकी बादशाही में शामिल हो जाएं, ये तो उसकी विश है। लेकिन ये सर्द होने वाली विश कि काश तू मेरे पास ही ना होता, हैरानकुन है कि नहीं? तो क्या वजह है, क्यों यीशु मसीह ऐसी विश ख्वाहिश कर रहे? हाँ जी, टेस्ट भी आज होते हुए ना होना। हाँ, वेरी गुड। और
सर्द होने की क्यों ख्वाहिश कर रहे कि काश तो क्या होता, यानी मेरे से दूर होता। ये तो अच्छी विश नहीं है, क्या ख्याल है? हाँ जी, हाँ, वेरी गुड। और कोई? हाँ, हाँ, वेरी गुड, शाबाश। ओके, सो खुदावंद यीशु मसीह की ये विश, ये ख्वाहिश कि काश तू या तो क्या होता, सर्द होता, या क्या होता, लेकिन तेरी हालत बड़ी डेंजरस है कि तू क्या है, नीम गर्म है। तू क्या है, ना तू उधर है और ना तू मेरे पास है, ना तू मेरे से दूर है। तू कहाँ है? दरमियान में है। तू दरमियान में है। काश तू इस हालत में होता कि ये रियलाइज कर सकता कि मैं गुनहगार हूं। काश तू ये रियलाइज कर सकता कि मुझे अभी तौबा की जरूरत है। काश तू ये रियलाइज करता कि मैं मसीह से दूर हूं। काश तू ये रियलाइज कर सकता कि मैं चर्च से दूर हूं, कलीसिया से बाहर हूं। काश तू ये रियलाइज करता कि मुझे खुदा की हुजूरी में जाने की जरूरत है। लेकिन तेरा हाल क्या है? तेरा हाल ये है कि तू मेरी हुजूरी में भी नहीं है, लेकिन तू चर्च भी आता है, तू दायकी भी देता है, तू चंदे भी बड़े देता है, तू बहुत सारे ऐसे नेक काम भी करता है, लेकिन अफसोस के तू सिर्फ अपने आप को तसल्ली देता है कि तू मसीही है। दरअसल तू मसीही नहीं है। तू सिर्फ मजहबी बन गया है, तू रस्मी बन गया है, लेकिन तू मसीही नहीं बना है। यही मुझे तुझ पर अफसोस है। आज भी बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी जगहों पे बड़े एक्टिव नजर आएंगे, बड़े नारे लगाते, बड़ी दुआएं करते, बहुत कुछ करते नजर आएंगे। अफसोस कि वो ना तो सर्द हैं और ना गर्म है, ना वो मसीह से दूर हैं, ना वो मसीह के करीब हैं। वो सिर्फ लबादे ओढ़कर, वो सिर्फ अपने आप पर एक लबादा चढ़ाकर या भेष बदलकर वो लोगों को इम्प्रेस करते, मुस्तासर करते हैं कि हम बड़े अच्छे मसीही हैं। दरअसल वो मसीही नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह की विश क्या है कि काश तेरे अंदर ये रियलाइज करने की सलाहियत होती कि तू खुदा से दूर है, तुझे तौबा की जरूरत है, तुझे कलाम की जरूरत है, तुझे उसकी बादशाही में शमूलियत की जरूरत है। लेकिन तूने तो तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, और अब तू कहता है कि मुझे तो अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है, जबकि ये रस्मी और मजहबी जिंदगी तू गुजार रहा है। अब यीशु मसीह इसकी और वजाहत करते हैं। लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। अब देखिए कि ये जो कामों को जानना और उसके बाद ये बयान करना कि ना तू सर्द है ना, ये भी बड़ा जबरदस्त कनेक्शन है। अगर आप इसको रिलेट करें कि वो जो काम कर रहे हैं वो समझ लें कि सिर्फ हम ही जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किसी और को पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे पता है तेरी हालत का, कि तू है नीम गर्म, लेकिन शो तू ये करता है तू गर्म है। अब डेंजरस हालत ये है कि ना तू मुझसे दूर है, काश तू मुझसे दूर होता, काश तू गुनाहगार की हैसियत से अपने आप को देखता कि तुझे अभी तौबा की जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है। लेकिन अफसोस कि तू उस हालत में भी नहीं है। तू अपने आप को रूहानी समझता है लेकिन है नहीं। तू होंठों से मेरी ताजीम करता है लेकिन तेरा दिल मुझसे दूर है। तू जाहिरी तौर पे तो अपने आप को लोगों के सामने रूहानी बनाकर पेश करता है, लेकिन अफसोस कि तेरा दिल मुझसे दूर है। तेरी जिंदगी मेरी हुजूरी से खाली है, ये मुझे तेरे पर अफसोस है। आगे लिखा है, काश कि तू क्या होता, सर्द या गर्म। अब 16वीं आयत बयान करती है, पास चूके तू ना तो गर्म है और ना सर्द है, बल्कि क्या है, नीम गर्म है। अब ये बात जो यहां बयान की गई है, ये उस वक्त की जो कलीसिया है ये ही समझ सकती थी बात कि दरअसल ये पैगाम क्या है। आज जब तक हम इस कलीसिया के पस मंजर में न जाएं, इस कलीसिया के बैकग्राउंड को न समझें,
उस इलाकाई इंतजाम को न समझें तो हम इस बात के भेद को जानने से भी कासिर हैं। बहुत दफा बाइबल मुकद्दस की बातों को लोग इसलिए भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते क्योंकि हम कभी भी उस माजी में जाना ही नहीं चाहते, हम उस कल्चर को नहीं समझना चाहते, हम उस वक्त के माहौल को नहीं समझना चाहते, उस वक्त के लोगों के पेशों और काम और दीगर चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो हम उन बहुत सारी चीजों को आज अपने माहौल से रिलेट करते हैं और बहुत दफा चीजों को समझने से कासिर रह जाते हैं। अब यहां जो बात बयान की गई है, चूंकि तू ना तो क्या है, गर्म है ना सर्द है। अब ये जो लुदिकिया का इलाका है, लुदिकिया के इलाके के पास दो तरह के चश्मे जारी थे। एक ऐसे चश्मे थे एक तरफ से जहां से इन्हें गर्म पानी मिल जाता था और ये लोग, बल्कि ये लोग नहीं बल्कि दीगर लोग जो हैं, लुदिकिया के अलावा भी बहुत सारे लोग जो हैं, यहां से इन गर्म पानी के चश्मों से पानी लेते और मुख्तलिफ मेडिसिन के तौर पे, दवाई के तौर पे या घरेलू इस्तेमाल के लिए उस पानी को इस्तेमाल किया करते थे। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे चश्मे थे जो ठंडे पानी के चश्मे थे। जिन लोगों को ठंडे पानी की जरूरत है वो ठंडे पानी के चश्मों पे जाते और ठंडा पानी लेकर आ जाते। अब यीशु मसीह जिस हालत की बयान कर रहे हैं, कहते हैं कि ना तो क्या है, ना गर्म है ना सर्द है, बल्कि क्या है, नीम गर्म है। ये जो गर्म पानी के चश्मे थे, अगर ये इस चश्मे पर जाकर पानी कोई ना लेता और कहता कि चलो मैं 1 मील के फासले पर हूं तो आ तो गर्म ही रहा है और मैं 1 मील के फासले से पानी भर लूंगा, तो वहां तक पानी आते आते नीम गर्म हो जाता था। क्या हो जाता था? नीम गर्म हो जाए, यानी उसकी जो शिद्दत थी गर्म होने की वो कम हो जाती थी और वो नीम गर्म हो, ठंडा तो नहीं होता था लेकिन वो नीम गर्म। और जब वो इतनी दूर से बहता आ रहा था तो बहुत सारे जर्म्स भी साथ मिल जाते थे। जो चश्मे से पानी निकलता था उसमें तो जर्म्स नहीं थे, वो तो लोग पी लेते थे, लेकिन जैसे ही ये पानी जो है ये चलते चलते 1 मील या 2 मील के फासले तक आता तो बहुत सारे जर्म्स जो हैं, जरासीम जो हैं वो मिक्स हो जाते। और अब होता क्या था, जो लोग यहां से भरते थे वो इस पानी को पी नहीं सकते थे। क्यों नहीं पी सकते थे? क्योंकि पीने से चूंकि और बहुत सारी चीजें साथ मिल चुकी थी अब पानी में, तो अब उनको ऐसे जब पीने लगते तो एकदम से कै आ जाती थी, उल्टी आ जाती थी, वॉमिट आ जाती थी। अब यीशु मसीह यही बयान कर रहे हैं, लिखा है बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द, बल्कि क्या है, नीम गर्म, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा। मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे वॉमिट आ जाती है। मुझे क्या होता है? वॉमिट आ जाती है, क्योंकि तू नीम गर्म है और नीम गर्म जैसे तू पानी भी ना पी सकता क्योंकि बहुत सारे जरासीम उसमें मिक्स हो चुके हैं। इसी तरह तेरी जिंदगी है। मुझे तेरी जिंदगी भी ऐसी लगती है कि मैं तुझे अपने साथ रख ही नहीं सकता। मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे उल्टी आ जानी है, वॉमिट हो जानी है, ऐसे जैसे कै आ जानी है। इसी बात को यहाँ खुदा यीशु मसीह बयान कर रहे हैं कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को, मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को, मैं उसे अंदर ले जा ही नहीं सकता, मैं उसे डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि तेरी जिंदगी ऐसी है। जितने लोग ऐसी दो रंगी जिंदगी गुजार रहे हैं, दो मालिकों की खिदमत करते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं, वो इस बात को अंडरस्टैंड करें, समझें। वो चर्च में रूहानी है, बाहर गाने गाते हैं, वो चर्च में गीत गाते हैं, बाहर फिल्में देखते हैं, वो यहाँ खुदा की इबादत करते हैं, बाहर किसी भी तरह की सोसाइटी या किसी भी तरह के लोगों को वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये बात उन सब लोगों के लिए है जो चर्च में रूहानी और बाहर दुनियादार हैं, जो चर्च में खुदा के लोग हैं और बाहर इब्लीस के साथ मिल जाते हैं। ये उनके लिए कलाम है। अब 17वीं आयत में लिखा है, और चूंकि तू कहता है कि मैं क्या हूं,
दौलतमंद हूँ। दौलतमंद हूँ। क्या कहता हूँ कि मैं दौलतमंद हूँ। ये लुदीकिया के लोग बहुत दौलतमंद थे, बहुत पैसा था इनके पास। इनके पास चूंकि बहुत बड़ी बड़ी चरागाहें थी, हरियाली बहुत ज्यादा थी, और इनके पास एक बड़ा बिजनेस था। ये ब्लैक कलर की इनके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां, और उनको ये इन चरागाहों में चराते थे, और उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत बड़ा कारोबार था इनके पास। ये इतने दौलतमंद थे, और इनकी दौलत की वजह से अब लुदीकिया शहर और खास तौर पे ये जो लोग हैं, ये जो लुदीकिया चर्च के लोग हैं, इनमें बड़ा तकब्बुर आ चुका था, घुमंड आ चुका था अपने पैसे की वजह से, अपनी दौलत की वजह। ये इतने दौलतमंद थे, कहा जाता है एक वक्त में ये शहर ज़ल्ज़ले की वजह से तबाह हो गया, काफी हद तक ये तबाह हुआ, और रूबी गवर्नमेंट ने इन्हें ऑफर की कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इस नुकसान से बाहर आने के लिए। ये इतने मुतकब्बिर लोग थे, इन्होंने सपोर्ट लेने से इनकार कर दिया कि नहीं, लुदीकिया के लोग आपसे सपोर्ट नहीं लेंगे। इतने ये मुतकब्बिर हो चुके थे, गुरूर आ चुका था, अमीर तरीन लोग थे। और फिर चूंकि जहां दौलत की भरमार हो वहां और बहुत कुछ भी मौजूद होता है। थिएटर्स की बहुत बड़ी तादाद यहां पर मौजूद थी, और बहुत सारी चीजें लोगों को यहां आम मिल जाती थी, बदी, गुनाह, खराबियां, और जिस तरह की सोसाइटी कोई ज्वाइन करना चाहता है वो उसे आम मिल जाती थी। और इस बात को यहां बयान किया गया है कि चूंकि तू कहता है कि मैं क्या हूं, दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं, और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। अब हालत देखें, वो समझते हैं हमारे पास पैसा है, दौलत है, हम कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन कलाम क्या बयान करता है कि तू कमबख्त है, तू खार है, तू नंगा है। तू समझता है कि तेरे पास बहुत कुछ है, हाँ हो सकता है दुनियादारी में तेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन उस मयार पर, जिस पे मयार पे मैं तुझे देखना चाहता हूं, उस मयार पे तू नंगा है, उस मयार पे तू गरीब है, उस मयार पे तू कमबख्त है, क्योंकि तूने अपनी दुनियादारी की हालत को तो बेहतर बनाने के लिए बड़ी एफर्ट की है, बड़ी मेहनत की है, बहुत काम किया है, बड़ा बिजनेस किया है, लेकिन तूने अपनी रूहानी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं किया है। और यही तेरी खराबी है कि तू दुनियादारी में तो दौलतमंद है, लेकिन रूहानी एतबार से क्या है, नंगा है, गरीब है। अब यीशु मसीह उन्हें सलाह देते हैं, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू क्या हो जाए, दौलतमंद हो जाए। अब ये तो ऐसे ही है जैसे सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है कि एक शख्स इतना दौलतमंद, उससे कहा जाए कि तू सोना मुझसे खरीद ले, तू सोना मुझसे खरीद ले। क्यों? क्योंकि जो तेरे सोने की वर्थ है, जो तेरी दौलत की वर्थ है, वो सोने के सामने कुछ नहीं है। हालेलुया। और ये सोना जिसकी बात यहां की जा रही है, दरअसल ये खुदा के कलाम की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? खुदा के कलाम की बात की जा रही है कि तेरी दौलत इसके सामने कुछ अहमियत नहीं रखती। अगर तू बहुत दौलतमंद है, तेरे पास बहुत कुछ है, बहुत आसाइशें हैं, आराम है, जिंदगी की हर फैसिलिटी तुझे अवेलेबल है, लेकिन अगर तू कलाम से खाली है तो इसका मतलब यह है कि तू स्टिल गरीब है, तू स्टिल नंगा है, तेरे पास कलाम की दौलत नहीं है। तो मुझसे क्या कर ले? ये दौलत खरीद ले। ये दौलत क्या कर ले? खरीद ले। खरीदना कैसे है? बिजनेस है ना, बिजनेस हो रहा है। यीशु मसीह असल में ये समझाना चाह रहे हैं कि इस दौलत को खरीदने के लिए वो दौलत तुझे बेचना होगी। इस दौलत को ले, जैसे खुदावंद यीशु मसीह के पास एक मालदार शख्स आता है और कहता है मैं क्या करूं? खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं हुक्मों पे। वो कहता है बचपन से अमल करते आ रहे हैं, ये तो लड़कपन से अमल हो रहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि अभी भी तुझ में एक चीज की कमी है। कमी क्या है? कि तू स्टिल
खुदा से ज्यादा अपनी दौलत से प्यार करता है। अगर तू चाहता है कि तू खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाए तो जा खरीद इस दौलत को बेच और खुदा की बादशाही को खरीद ले। इसका सौदा कर ले कि तुझे दौलत से, दुनियावी इन तमाम आसाइशों से अपने आप को अलग करना होगा। अरे बहुत सारे लोग यहां से ख्याल करते हैं कि शायद खुदावंद यीशु मसीह इंसानी दौलत के, पैसे के खिलाफ हैं, आसाइशों के खिलाफ हैं, फैसिलिटीज के खिलाफ हैं। ऐसा हरगिज नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। खुदा का कलाम बयान करता है, बड़े बड़े अमीर तरीन लोग खुदावंद के कलाम में हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पे बयान किए। बुजुर्ग अब्राहम बहुत अमीर, इसी तरह से उनके साहबजादे आगे बने इसराइल, स्टिल बने इसराइल का पूरी दुनिया में आज भी ऐसा ही नाम जाना जाता है। अय्यूब को देख लें, और भी बहुत सारी शख्सियत। खुदा को आपकी या मेरी दौलत, आसाइश से कोई मसला नहीं। मसला क्या है? मसला ये है कि जब हम अपनी दुनियावी चीजों पर खुदा को तरजीह नहीं देते और खुदा पर अपनी चीजों को तरजीह देते हैं, अपनी दौलत, अपने पैसे और अपनी आसाइशों को तरजीह देते हैं, और हमारी दौलत, हमारा पैसा, हमारी आसाइशें खुदा की बादशाही की वुसअत के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, तो ये प्रॉब्लम, ये क्या है? प्रॉब्लम है। खुदा को इन आसाइशें इसीलिए दी हैं ताकि हम इसे बादशाही के लिए इस्तेमाल करें। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने एक शख्स की मिसाल दी जो बड़ा अमीर है, उसका एक मुख्तार है, उसने अपनी सारी दौलत उसे दे रखी थी। फिर खैर ऐसा हुआ कि उसका मुख्तार जो है वो बेईमान हो गया और उसने उसे निकाल दिया, और उस बेईमान नौकर ने, मुख्तार ने क्या किया कि उसकी दौलत से जो पैसा या जो उसे इख्तियार था, उसने उसे बड़ी हिकमत के साथ इस्तेमाल किया। और यीशु मसीह उसके ताल्लुक से बयान करते हैं कि ये जो दुनियादारी के लोग हैं या जो इस जहान के फर्जंद हैं, वो नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हैं। वो क्या है? वो ज्यादा होशियार हैं। होशियारी क्या है कि उसने समझा है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जा रहा है और मैं निकलने के बाद क्या करूंगा, कहां जाऊंगा। उसने उसी दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा कर लिए, उसी दौलत से अपने लिए क्या पैदा कर लिए? लेकिन तुम नूर के फर्जंदो, तुम इस दौलत को अपने लिए आसमानी मकामों पर दोस्त पैदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तुम अपने पैसे को बादशाही की वुसअत के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। उन्हें दुनियादारी में रहते हुए भी अपने आइंदा दिनों की फिक्र है, लेकिन तुम इस दुनियादारी के माल को, नारास्ती की दौलत को खुदा की बादशाही के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो कि डेंजरस और खतरनाक। सो दौलत से प्रॉब्लम नहीं है, पैसे से मसला नहीं है, आसाइशों से मसला नहीं है। जब आसाइशें आप खुदा की बादशाही के लिए इस्तेमाल नहीं करते तब मसला है, तब प्रॉब्लम है। यही उस अमीर आदमी से खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि जा इसे बेच, क्योंकि तेरा ध्यान, तेरी तवज्जो और तेरा ख्याल जो है वो दौलत पे लगा हुआ है। इसे बढ़ाने, इसे इस्तेमाल करने, इसे लगाने पे लगा हुआ है, लेकिन तेरा जो जहन है, तेरा दिल जो है वो खुदा की तरफ माइल नहीं। आमीन, आमीन। अब यहां भी लिखा है कि मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले। खरीदेगा कैसे? पहले अपनी दौलत को बेच, दौलत इस्तेमाल कर, ताकि तेरी जिंदगी में खुदा की बादशाही वुसअत पाए, तेरे वसीले से खुदा की बादशाही वुसअत पाए। अपने पैसे, अपने वसाइल, अपने टैलेंट्स को, अपनी खूबियों, अपनी क्वालिटीज को, अपनी सफात को बादशाही की वुसअत के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सब कुछ दिया इसलिए गया है ताकि हम इसे खुदा की बादशाही के लिए इस्तेमाल करें। आमीन, आमीन। आगे लिखा है, और सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए। वो कहते हैं हम अमीर तरीन है, खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू नंगा है, और नंगा है तो इसका मतलब है कि तुझे पोशाक की जरूरत है। और पोशाक भी, ये तो जो लुदिकिया है, लुदिकिया शहर में
چونکہ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ بلیک کلرز کی بہت ساری شیپس موجود تھی اور مطلب مختلف اقسام کی موجود تھی، اور یہ لوگ ان پہ بزنس کرتے تھے۔ بزنس کیا تھا کہ ان کی جو اون ہے، اون کو سیل بھی کرتے اور اون سے ایک لباس بناتے تھے۔ اب یہ دنیا میں انہوں نے اس لباس کو ایک نام، ایک برانڈ کے طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، مارکیٹنگ کی، اور اب پوری دنیا میں لوگ اسپیشل بڑی بڑی قیمت ادا کر کے اس برانڈ کو خریدنے کے لیے آتے تھے، اور اس برانڈ کا نام بھی انہوں نے لودیکیا برانڈ رکھا تھا۔ کیا رکھا تھا؟ لودیکیا۔ اب کسی نے بھی ان کا کپڑا پہنا تو وہ پھولے نہیں سماتا، جیسے وہ مہین کے دانی کپڑے پہنتے نا، جیسے یسوع مسیح نے ایک امیر آدمی کے تعلق سے پیرابل میں بتایا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ لوگ لودیکیا پہن کر تو ایک دوسرے کو بتاتے، تجھے پتا ہے میں نے کیا پہنا ہے، کون سا برانڈ پہنا ہے؟ اگر کسی کو پتا نہیں ہے تو اسے بتاتے کہ میں نے لودیکیا پہنا ہے۔ لوگوں کا خواب تھا اس وقت لودیکیا پہننا، لوگوں کا گمان تھا کہ وہ لودیکیا پہنے، تاکہ جیسے آج بھی بڑے برانڈ کانشیس لوگ ہیں، پہن لے تو جب تک کسی کو بتانا ہے سکون ہی نہیں ملتا کہ میں نے پہنا کیا ہے۔ شوز لے لے اچھے، جب تک بتانا لیں کہ میں نے شوز کہاں سے لیے ہیں سکون نہیں آتا۔ تو یہاں بھی لوگ ایسے ہی تھے، لودیکیا برانڈ پہننا لوگوں کا خواب ہوا کرتا تھا۔ اب یہ لوگ لودیکیا بیچتے تھے، پہننا تو ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، کیا خیال ہے، اپنا برانڈ ہے نا، تو جو مرضی جب مرضی پہنے۔ اب یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ برانڈ کے مالک کو کہہ رہے ہیں کہ تو کیا ہے؟ ننگا۔ برانڈ کے مالک کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تو ننگا ہے، اور تو شرمندہ ہو رہا ہے، تیری شرمندگی ظاہر ہو رہی ہے۔ شرمندگی اس لیے ہے کیونکہ تیرے بدن پر لباس نہیں ہے۔ خود سے صلاح دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ میں تجھے صلاح دیتا ہوں، تو یہ بلیک برانڈ پہن کر یا لودیکیا پہن کر تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، تو میں تجھے سفید پوشاک دیتا ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کون سی پوشاک دیتا ہوں میں تجھے؟ سفید پوشاک دیتا ہوں۔ سفید پاکیزگی کی علامت ہے، خدا کی حضوری کی، اس کی پریزنس کی علامت ہے۔ سو مشورہ کیا دے رہے ہیں کہ میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ سفید پوشاک لے، اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی سے بچ جا۔ تو شرمندہ ہو رہا ہے، تو پہنتا تو ہے لودیکیا، تو برانڈ تو پہن رہے تھے، کہ اسٹل تو کیا ہے؟ ننگا ہے۔ دنیا داری کے ساتھ تو اپنے آپ کو بہت سجاتا ہے، بہت تو لبادے اوڑھتا ہے، لیکن میرے سامنے تو کیا ہے؟ ننگا ہے۔ میرے سامنے تیری شرمندگی ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ تیرے اندر گناہ ہے، اور گناہ ہمیشہ شرمندگی لاتا ہے۔ گناہ ہمیشہ لوگوں کو ندامت تک پہنچاتا ہے، لوگوں کو تباہی اور بربادی تک پہنچاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو کہتا تو ہے کہ تو گرم ہے، لیکن افسوس کہ تو نیم گرم ہے۔ تجھے میں صلاح دیتا ہوں، اگر تو نیم گرم حالت سے نکلنا چاہتا ہے تو میرے سے پاکیزگی کی پوشاک لے لے، تاکہ تو پھر سے شرمندہ نہ ہو۔ گناہ بہت ڈینجرس، بہت خطرناک۔ گناہ کرنے والے ہی کا اگر کوئی سمجھے کہ میں ہی گناہ کرتا ہوں، میری بیوی کو کیا، میرے بچوں کو کیا، میرے ساتھی کو کیا، میرے ماں باپ کو کیا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گناہ بہت ڈینجرس، بہت خطرناک ہے۔ گناہ کرنے والے ہی پہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے کہ اگر اس نے گناہ کیا تو اس پہ اثر انداز ہو، نہیں۔ گناہ کنٹیجیس ہے، قریب ترین چیزوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ مطلب میاں گناہ کرتا ہے تو وہ نہ سوچے کہ میرے بچوں پر اثر انداز نہیں ہوگا، یا ماں گناہ کرتی ہے تو وہ نہ سوچے کہ میرے بچوں پہ اثر انداز نہیں ہوگا، یا میاں پر نہیں۔ اگر میاں بزنس کاروبار کرتا ہے، گھر میں خرابی ہے، چاہے وہ بیوی کا رہی یا بچے کا رہے، بزنس تباہ خراب۔ ماں کہیں کام کر رہی ہے، میاں درست نہیں تو کام تباہ، زندگیاں تباہ، خاندان تباہ، برباد۔ اس کی مثال آپ کو پیدائش کی کتاب میں مل جاتی ہے۔ گناہ تو آدم اور حوا نے کیا، ایسا ہی ہے، خدا نے سزا بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ گناہ انہوں نے کیا ہے، سزا بھی ملی ہے، لیکن ان کے گناہ کا اثر پتہ کہاں تک گیا؟
कलाम में लिखा है कि तेरे सबब से जमीन क्या हो गई है, चीजों पे असरअंदाज हो जाता है गुनाह, बेजान चीजों पे जिन्हें हम समझे कि इनका क्या है, वो चीजें हमारे लिए डेंजरस, खतरनाक बन जाती हैं। जिस जिस चीज के साथ हम रहते हैं, जिस जिस चीज के साथ या जो जो चीज इस्तेमाल करते हैं, वो सब हमारे लिए कर्स बन जाती हैं, लानत बन जाती हैं। गुनाह इतना डेंजरस और खतरनाक है। तो यीशु मसीह से कह रहे हैं कि मेरे से पाकीज़गी की पोशाक ले ले। तू बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनता है, तू बहुत अमीर आदमी है, तू बहुत अपने आप को ढांकता है, लेकिन स्टिल तेरी शर्मिंदगी जो है वो मेरे सामने वाज़े है। अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए, महफूज रखने के लिए, इस निदामत, इस तबाही बर्बादी से बचने के लिए गुनाह से सेपरेट हो जा, अलग हो जा, क्योंकि इसके साथ रह के तू कभी भी खुश नहीं रह सकता है, तू कभी भी हमेशा की जिंदगी का वारिस नहीं हो सकता है। आगे लिखा है, मैं इसको खत्म करूंगा, मुझे आगे बढ़ जाना है नहीं तो ओके। और आंखों में लगाने के लिए क्या ले ले, सुरमा ले ले, ताकि तू क्या हो जाए, बीना हो जाए, बीना हो जाए। अब जो आर्मी थी ना इनकी, रूमी आर्मी ने अपने जो सिपाही हैं उनके लिए लाजमी करार दिया था कि वो लुदिकिया का सुरमा पहना करें। लुदिकिया का सुरमा, लुदिकिया का ये चैलेंज था कि जो शख्स लुदिकिया का सुरमा इस्तेमाल कर लेगा वो जिंदगी में कभी भी अपनी बीनाई खो नहीं सकता। अब यीशु मसीह उन लोगों को जो लुदिकिया सुरमा बेचते हैं, वो खुद भी इस्तेमाल करते थे और दुनिया को भी देते थे, उनको पैगाम दे रहे हैं कि तू लोगों को देता है, खुद भी डालता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि तू खुद क्या है, अंधा है। तो खुद क्या है, अंधा है। वो भी हैरान है कि भाई हम दौलतमान, हम क्या कुछ हैं, और यीशु मसीह हमें क्या क्या कहते जा रहे हैं। दरअसल ये अपनी जिस्मानी हालत को देख रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह इनकी रूहानी हालत को देख रहे हैं। हर इंसान आज ऐसा ही है, वो अपनी जिस्मानी अपने ब्राइट फ्यूचर, बच्चों के ब्राइट फ्यूचर, फलां ये वो, घर प्लॉट, बच्चे इधर चले जाए, मैं उधर चला जाऊं, बाहर अंदर के चक्कर। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह फिक्रमंद हैं हमारी रूहानी हालत के, मरने के बाद जाएंगे कहां। खुदावंद यीशु मसीह फिक्रमंद है इस बात के लिए। ये तो कितने साल, 80 साल, बढ़िया 100 साल हो गए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जहां हमने हजारों, लाखों, करोड़ों साल रहना है, उसके लिए फिक्रमंद है कि यहां से जाने के बाद इनका क्या होगा। एक बात अगर आप अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें कि हमारा मसीह जो है, जितना हम अपने लिए फिक्रमंद हैं, ये समझते हैं कि मैं अपने लिए बहुत अच्छा सोच सकता हूं, याद रखें कि मैं उस तरह से अपने बारे में नहीं सोच सकता जैसा मेरा मसीह मेरे बारे में सोच सकता है। आमीन। और मैं अपने लिए वो सब कुछ नहीं कर सकता, बेहतरीन हालत में होकर भी नहीं कर सकता जैसा मेरा मसीह मेरे लिए कर सकता। इसलिए अपनी प्लानिंग्स को बंद करके डिपेंडेंट हो जाएं खुदावंद यीशु मसीह, आमीन, उस पे इन्हिसार करें, अपनी निगाहें उस पर लगा लें, ताकि खुदावंद और हमें अपनी गुर्बत अता करे। खुदावंद अपने कलाम के वसीले। आमीन।